Okay, dear, welcome back. And we were talking about the reward management framework. And I told you that there are certain theories which are operational at the back end of these strategic aspects कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो लोगों को एंगेज करना है, जो आपने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को मर्ज करके टोटल रिवॉर्ड पॉलिसीज बनानी है, वो तमाम पर्सपेक्टिव्स के बैकएंड के ऊपर जो कुछ थ्योरीज हैं वो क्या हैं. So let me share with you few of the theories. सबसे पहले I'm sharing with you economic theories of pay and wages. When you talk about economic theories of pay and wages, तो हमारे पास generally 7 theories वो evolve होती हैं, and those are wages fund theory, subsistence theory, the surplus value theory of wages, residual claimant theory, marginal productivity theory, the bargaining theory of wages, and behavioral theories of wages. इनको हम मुख्तसर सा देख लेते हैं. Wages fund theory, it was developed by Adam Smith, और उसने ये कहा कि workers are paid wages out of a predetermined fund of wealth, and this fund, he said, is called wages fund, created as a result of savings. According to Adam Smith, the demand of labor and the rate of wages depend on the size of the wages fund. Okay, तो जितना आपके पास pool available होगा उसके मुताबिक कि आप अपनी workforce hire करोगे, and accordingly, if the wages fund is large, wages would be high and vice versa. Subsistence theory was developed by David Ricardo, and he said the basic assumption of this theory is that if workers are paid wages more than subsistence level, workers' number will increase, and as a result, wages will become down to the subsistence level. On the contrary, if the workers are paid less than subsistence wages, the number of workers will decrease as a result of starvation, death, malnutrition, and disease, etc., and many would not marry. Then wages rate would again go up to subsistence level. Since wages rate tends to be at subsistence level at all the cases, that is why this theory is also known as iron law of wages. Now you can very comfortably see कि किस detail के साथ they analyzed the situations and they came up with an idea कि subsistence level के ऊपर wages जो हैं एक economy के अंदर वो किस तरह से prevail वो कर रही होंगी. Likewise, Karl Marx, he came up with an idea of surplus value theory of wages, and this theory was developed by obviously Karl Marx, and he said this theory is based on the basic assumption that like other article, labor is also an article which could be purchased on payment of its price, that is wages. Okay, and according to Karl Marx, subsistence level, which is less than in proportion to time labor takes to produce items, the surplus according to him goes to the owner. ओके, तो बेसिकली चूंकि कार्ल मार्क्स का मेन जो कंसर्न था वो हमेशा से कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के बारे में उसने अपनी डिस्कशन ज्यादा की हुई थी, तो देयरफॉर वो अब सरप्लस जो है वो ओनर को पहुंचा रहा है और सिर्फ सब्सिस्टेंस तक वो रख रहा है वर्कर्स को. अगर हम रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी की बात करें तो दिस थ्योरी ओज इट्स डेवलपमेंट टू फ्रैंकिस ए वॉल्कर, और वॉल्कर ने कहा कि देयर आर 4 प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी: land, labor, capital, and entrepreneur. He views that once all other 3 factors are rewarded, what remains left is paid as wages to workers. ठीक है? So different तरीकों से the people try to come up with an idea कि आपके जो wages हैं उनके बैकएंड के ऊपर क्या चीजें कार फरमाएं, आपके जो सबसिस्टेंस लेवल है वो किस तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अभी जैसा मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि डेविड रिकार्डो ने सबसिस्टेंस लेवल को क्या डिफाइन किया, उसकी एक्सप्लेनेशन बेटा कुछ इस तरह से है कि अगर आप
लोगों की इनकम बढ़ाओगे इन टर्म्स ऑफ सपोजिटली देयर वेजेस, तो मोर पीपल वुड स्टार्ट वर्किंग. इफ मोर पीपल वुड स्टार्ट वर्किंग, तो उससे क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो बढ़ेंगे, और सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन के मुताबिक व्हेन देयर वुड बी मोर पीपल टू वर्क, सो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर जाएगी और सब्सिस्टेंस लेवल जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज मोर पीपल वुड बी अर्निंग. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उनको लेस पे करोगे तो वर्कर्स वुड बी आउट ऑफ जॉब. जब वो आउट ऑफ जॉब होंगे तो खाने को नहीं होगा, माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, डिजीजेस हो जाएंगी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा. जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा तो सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन के तहत आपकी डिमांड ऑफ वर्कर्स जो है वो कम हो जाए, सॉरी सप्लाई ऑफ द वर्कर्स वो कम हो जाएगी. जब सप्लाई ऑफ द वर्कर्स कम हो जाएगी तो आप वेजेस ज्यादा बढ़ाने के चांस वो रखोगे. सो पीपल वुड बी रेयर टू बी अवेलेबल फॉर द वर्किंग, और जब वो रेयर हो जाएंगे, उनकी नंबर ऑफ पीपल फॉर वर्किंग क्लास कम हो जाएगा, तो उस वक्त ऑब्वियसली आप दोबारा से उनको वेजेस देकर ज्यादा काम करवाने की कोशिश करोगे. सो इस तरह आपका एक ओवरऑल इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है वो चलता रहेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज आयरन लॉ ऑफ वेजेस. ठीक है, सो एक बैलेंस सोसाइटी में वो मेंटेन रहता है, और उस बैलेंस के बैकएंड के ऊपर बड़े खौफनाक बाजुकात कवानीन जो हैं वो कारफरमा होते हैं. राइट, सो बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस अगर आप देखो तो जिसमें जॉन डेविडसन ने कहा कि केम विद एन आइडिया दैट द फिक्सेशन ऑफ वेजेस डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स. इफ वर्कर्स आर स्ट्रॉन्गर इन बार्गेनिंग प्रोसेस देन वेजेस टेंड टू बी हाई. ठीक है, ओके आपका जो कंपेटिटर्स का वेज रेट है, जो पे रेट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली उसका हम एवरेज वैल्यू वो पिक करते हैं. ठीक है, तो एक इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो एवरेज पे दी जा रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात वो की जाएगी. कंपनी टू कंपनी जो वेरिएशन होंगी ऑब्वियसली दे वुड बी प्रिवेलिंग. ठीक है, सो जब भी याद रखें कि आप वेज एंड सैलरी कंपैरिजंस करते हो तो वेज एंड सैलरी कंपैरिजंस हमेशा एवरेज वैल्यूज के ऊपर वो किए जाते हैं. उसमें नो डाउट, जिस तरह आप स्टैटिस्टिक्स में वर्ड यूज करते हो आउटलायर्स के, तो नो डाउट आउटलायर्स वुड ऑलवेज बी देयर. इसी तरह हमारे पास बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस वो अवेलेबल है, जिसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडीज एंड एक्शन प्रोग्राम्स कंडक्टेड, सम बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ वेजेस. जिसमें के जो डिस्कशन पॉइंट है वो क्या है कि एम्प्लॉइज एक्सेप्टेंस टू ए वेज लेवल, इसको मद्देनजर वो रखा जाएगा. द प्रिवेलेंट इंटरनल वेज स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है, एम्प्लॉइज कंसिडरेशन ऑन मनी एंड वेजेस एंड सैलरीज एज मोटिवेटर्स वो काउंट किया जाता है. और उसी बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस से आपकी ड्राइव होती है इक्विटी थ्योरी भी, कि जिसमें आपके पास कंपैरिजन पॉइंट्स बन जाएंगे कि आपने जो अर्निंग की और आपके कोलीग ने जो अर्निंग की, सो आइदर यू आर ओवरपेड और अंडरपेड. ओके, लाइकवाइज अगर हम सम ऑफ द थ्योरीज की और बात करें तो वी हैव गॉट अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज ह्यूमन कैपिटल का जो हमारे पास फ्रेमवर्क है. ह्यूमन कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंटरेस्टिंग ये इसकी डेफिनेशन है, इसके अंदर बेशुमार क्रिटिसिज्म भी मौजूद है. इट इज सेड कि human capital is basically a measure of the economic value of employees skill set. अब ये जो कंसर्न है ये बहुत ट्रिकी है कि आप ह्यूमन की स्किल सेट को इकोनॉमिक वैल्यू एलोकेट कैसे करोगे. नो डाउट इसके पास हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पॉइंट मेथड एक अवेलेबल है, जो कि हे पॉइंट मेथड के नाम से वो जाना जाता है, जिसमें कि हम कंपनसेबल फैक्टर्स के अंदर स्किल्स को डिफाइन करते हैं और उन कंपनसेबल फैक्टर्स को हम सर्टेन पॉइंट्स एलोकेट करके उसकी इकोनॉमिक वर्थ कैलकुलेट वो करेंगे. ओके, बट आई एम नॉट टेकिंग यू इन दैट डिटेल. आपको सिर्फ मैं ह्यूमन कैपिटल की जो डेफिनेशन है उसकी हद तक रख रहा हूं, सो दैट आपके जहन में एक आइडिया क्लियर हो जाए कि ह्यूमन कैपिटल आखिर है क्या और उसको मेजर हमने करना कैसे है. सो अ मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय स्किल सेट, the concept of human capital recognizes that not all labor is equal. पहली बात तो ये हो गई, and that the quality of employees can be improved by investing in them. Okay, so the education, experience and abilities of an employee have an economic value for the employer and for the economy as a whole.
ओके सो अब जब हमने उसकी स्किल सेट को, हमने जो चार वर्ड्स यूज किए थे, KSAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो हर एक फैक्टर को हम एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कैलकुलेट करना वो शुरू कर देते हैं. ओके, आई एग्री, आई एक्सेप्ट कि इसके ऊपर बेशुमार क्रिटिसिज्म भी है, इसमें बेशुमार चैलेंजेस भी हैं, और अभी तक हमारे पास कोई श्योर शॉर्ट मॉडल वो अवेलेबल नहीं हो पाया जहां पे हम एक ह्यूमन की वर्थ को कैलकुलेट वो कर पाए. हमने स्किल्स को तो मॉनेटरी वेल्थ दे दी, हमने कॉम्पिटेंसीज को तो पैसों से तोल लिया, लेकिन ह्यूमन इटसेल्फ, उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में काउंट करना, उसके बेशुमार चैलेंजेस, उसके बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस वो हमारे पास अभी तक मौजूद हैं. और इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस के मौजूद होने से हमारे पास एक बहुत बड़ा एवेन्यू ओपन हो जाता है ऑफ फर्दर रिसर्च, ऑफ फर्दर कंट्रीब्यूशन के ह्यूमन कैपिटल कैलकुलेशंस में क्या क्या फर्दर इश्यूज आप एड्रेस करना चाहते हो. इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी वेज थ्योरी, तो एफिशिएंसी वेज थ्योरी के मुताबिक एफिशिएंसी वेज थ्योरी एडवोकेट्स पेइंग योर एम्प्लॉइज हायर देन द मार्केट वेज फॉर देयर रोल. अभी जैसा आपने सवाल भी पूछा कि कंपेटिटर की आप वेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो मॉडल अवेलेबल है दैट इज एफिशिएंसी वेज थ्योरी, जिसमें कि वो इस बात पे एम्फसिस कर रहा है कि एम्प्लॉइज हायर देन द मार्केट वेज ऑफ देयर रोल, फॉर देयर रोल. द term was first used by Alfred Marshall to describe the wage a firm would pay a worker to increase their productivity such that the firm was indifferent between the low efficiency worker and high efficiency worker. ये उसकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल हमने वो गो थ्रू की. यहां पर एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई टैलेंट एक्वायर करने की बात तो करता है, टैलेंट रिटेन करने की बात करता है, लेकिन याद रखिएगा कि जिसको आप टैलेंट कहते हो वो कॉस्टली होता है. ओके, अब जब एक तरफ टैलेंट कॉस्टली है तो दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव होता है कि उसने कॉस्ट को कट करना है. ओके, अब ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज हमारे सामने बनने शुरू हो जाते हैं कि एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव कॉस्ट कटिंग है और दूसरी तरफ जो राइट टैलेंट अवेलेबल है दैट टैलेंट अवेलेबिलिटी इज वेरी कॉस्टली. ओके, तो अब इन चीजों को बैलेंस करने के लिए नो डाउट आप कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज भी करोगे और कहीं ना कहीं आप ट्रेड ऑफ भी करोगे, और यही वो तमाम कंप्रोमाइजेस एंड ट्रेड ऑफ्स हैं जो हमारे लिए रिसर्च एवेन्यूज वो ओपन करते हैं. Another interesting theory जो कि अभी जो हमने फ्लो शीट देखी थी रिवॉर्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, उसमें यूज की जा रही है, एंड दैट इज बेसिकली टूर्नामेंट थ्योरी. एंड द टूर्नामेंट थ्योरी सेज दैट personal economics is basically the theory in personal economics used to describe certain situations where wage differences are based not on marginal productivity but instead upon relative differences between the individuals. ओके, तो यहां पर अब हम जो स्किल बेस्ड कंपनसेशंस हैं उनको फोकस में लेकर आते हैं कि रादर देन आप पे फॉर परफॉर्मेंस करो, आपने पे फॉर स्किल बेस्ड जो ओरिएंटेशन थी उस रूल को वो अडॉप्ट कर लिया. ओके, तो अब लोगों के दरमियान जो इंडिविजुअल स्किल सेट्स का फर्क होगा, दैट स्किल सेट वुड बी गेटिंग द वेज रादर देन कि आप उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आप उनकी कंट्रीब्यूशन को अदरवाइज वो गो थ्रू करो. अब इन थ्योरीज के पर्सपेक्टिव में हम बहुत से मॉडल्स वो डेवलप कर पाते हैं. आपकी बहुत सी रिसर्च जो एचआर के डोमेन में हो रही होगी उसमें इन जैसी बहुत सी थ्योरीज जो हैं उनका रेफरेंस वो कोट हो रहा होगा. और याद रखिएगा कि आप इन क्लासिक थ्योरीज के कंट्रीब्यूशन किए बगैर शायद अपना रिसर्च आर्टिकल वो पब्लिश नहीं करवा पाओगे, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज देयर कि आप इन थ्योरीज में बयान करदा पॉइंट्स को वो क्रिटिसाइज करो, एनालाइज करो, डेमोन्स्ट्रेट करो, यूज करो और उसके ऊपर अपना तबसरा, उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन उसको बिल्डअप करो. लिहाजा अब हमारे पास वक्त के साथ साथ सर्टेन प्रायोरिटीज इन एचआर वो बदलती रही. फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली जैसा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अहमद के एटीट्यूड जो है वो आप मैटर करवा रहे हो. सो बेसिकली एटीट्यूड जो है वो स्किल्स की डेमोन्स्ट्रेशन में होगा. ठीक है, तो आपका जो फोकस है मेजर वो दैट इज स्टिल ऑन द स्किल सेट, राइट.
तो स्किल्स अगर आपकी अप्रोप्रिएट है तो फिर उन स्किल्स की जो डेमोन्स्ट्रेशन है डिफरेंट वर्क सिचुएशंस के अंदर, वो आपकी एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में वो डेमोन्स्ट्रेट हो रही होगी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास इस एचआर की डोमेन में वक्त के साथ साथ जो प्रायोरिटीज आई उनको हम अब गो थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल 1990s में जो एचआर की प्रायोरिटीज थी, दैट वाज रिलेटेड टू द लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रेटेजी इन द मैनेजमेंट ऑफ एचआर एंड लाइकवाइज। उसके बाद एक और हमारे पास जो टाइम फ्रेम अवेलेबल हुआ, अगर हम 1990s में प्रोग्रेस करना शुरू करें तो विल बी फोकसिंग अपॉन मैनेजिंग फॉर एम्प्लॉय कंपिटेंस, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इस तरह के टॉपिक्स आने शुरू हो गए। 1992 में जो टॉपिक्स हमारे पास आ रहे थे, दे वर रिलेटेड टू द बिजनेस डायरेक्शंस, प्रॉब्लम्स एंड प्लान्स रिलेटेड टू द एचआर, रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज फॉर कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी, आइडेंटिफाइंग हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड सो ऑन। फिर 1993 में हमारे पास जो हाई प्रायोरिटी एचआर डोमेन्स आनी शुरू हुई, दे वर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन एसोसिएशन विद इंटरनल कस्टमर, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, टीम वर्क कैपेबिलिटी, टीक्यूएम। ये आपका बड़ा एक दौर गुजरा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस शुरू हुई और बेशुमार लिटरेचर जो था वो इस हवाले से प्रोड्यूस हुआ। 1995 में जो हाई प्रायोरिटी एचआर कंसर्न्स हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आए, दे वर रिलेटेड टू द लीडरशिप डेवलपमेंट, they were related with the managing learning linkages, they were related with the leveraging competencies and so on। अब यहां पर भी हम एक चीज विजुअलाइज कर सकते हैं कि हर दौर में इंडस्ट्री को फेस्ड चैलेंजेस के मुताबिक जो एचआर की प्रायोरिटीज थी वो बदलती रहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन टॉपिक्स में से आज बात करने की कोशिश करोगे तो परहैप्स यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज, बिकॉज इन चीजों के बारे में ऑलरेडी बेशुमार लिटरेचर वो क्रिएट हो चुका होगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपनी रिसर्च को, आप अपने कंट्रीब्यूशन को बेस बनाओ इस तरह से कि आपने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं वो गुज़िश्ता 3 से 5 साल से ज्यादा पुराने वो ना हो, सो दैट यू कुड कम टू नो कि लेटेस्ट इस वक्त जो ट्रेंड्स और इश्यूज हैं वो इंडस्ट्री के अंदर वो ग्लोबली क्या चल रहे हैं। अगर हम कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो एक और आपको मैं अब आइडिया यहां पर फ्लोट कर रहा हूं कि डिफरेंट कंट्रीज में जो रिसर्च है वो किस तरीके से फोकस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में इस वक्त जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एचआर से रिलेटेड चल रहे हैं हमारे पास, दे आर रिलेटेड टू द कैरियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, जॉब स्ट्रेस एंड लीडरशिप। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर एम्प्लॉय सिलेक्शन, जेंडर डिफरेंसेस एंड बायसेस, जॉब स्ट्रेस, लीडरशिप, टर्नओवर, ये इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जॉब स्ट्रेस, मोटिवेशन, इंडिया जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब स्ट्रेस, इसराइल कैरियर डेवलपमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम जापानी पर्सपेक्टिव में देखें तो कैरियर डेवलपमेंट, जॉब स्ट्रेस, लीडरशिप, दैट इज द हॉट टॉपिक। पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइट की जा रही है एचआर से रिलेटेड, इट इज फोकस्ड अपॉन जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब बर्नआउट, perceived organizational support, career counseling, leadership effectiveness, work life balance, ये पाकिस्तान के बड़े हॉट इश्यूज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कैरियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, लीडरशिप, इसके ऊपर बात वो की जा रही है। मेरा जो कंसर्न इस वक्त आपको ये सब कुछ दिखाने का है वो ये है कि आपको मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हवाले से भी ओरिएंटेशन दे रहा हूं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, जैसा हमने यहां पर देखा कि आपके डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो प्रायोरिटीज थी एचआर की बदल रही हैं। फिर आपको मैं जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव में भी लेकर आ रहा हूं कि जियोग्राफिकली भी इंडस्ट्रीज के जो कंसर्न्स हैं वो डिफरेंट हैं, कंट्री इकोनॉमीज के जो कंसर्न्स हैं वो कुछ उसमें सिमिलरिटी भी नो डाउट है लेकिन उसमें डिफरेंसेस भी हैं। Therefore, आपको ये देखना होगा कि जिस भी आप शोबा है जिंदगी में रिसर्च करना चाह रहे हो, उस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में उस रिसर्च की इंप्लीकेशन, उस रिसर्च की प्रैक्टिकलिटी, उस रिसर्च की ओरिएंटेशन वो आप कैसे बिल्ड करोगे। और आप अपना कंट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑफ नॉलेज जब लेकर आ रहे हो तो वो कंट्रीब्यूशन आपका लेटेस्ट होना चाहिए और इस कंसर्न पर बेस होना चाहिए जो उस वक्त की डिमांड इन द मार्केट वो हो। अब कंट्रीज का आपको एक आइडिया देने के बाद कि डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च वो किस अंदाज से की जा रही है, हमारा डिस्कशन अब एक और तरफ डेवलप कर रहा है और आपसे मैं एक बड़ा लेटेस्ट टॉपिक इन डेप्थ डिस्कस करने लगा हूं विच इज रिलेटेड टू द ग्रीन एचआरएम। माजी में हमारे पास बहुत सारे
प्रोजेक्ट्स भी और बहुत सारे थीसिस भी और रिसर्च आर्टिकल्स भी जो थे वो ग्रीन एचआरएम के ऊपर लिखे गए, बट वेरी फ्यू पीपल वुड नो कि ग्रीन एचआरएम एक्चुअली क्या है और ग्रीन एचआरएम के अंदर डिफरेंट जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने ग्रीन वो कैसे करना है. ओके, सो दैट इज अनदर रिसर्च एवेन्यू जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, एंड यू कैन ऑब्वियसली टॉक अबाउट द कंसर्न्स कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया आता है कि आप ग्रीन एचआरएम के अंदर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या किसी और हवाले से अपना कंट्रीब्यूशन लेकर आना चाहते हो तो आपके लिए रूम किस तरह का अवेलेबल वो होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रीन एचआरएम, तो सबसे पहला कंसर्न तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वी आर फोकसिंग अपॉन एनवायरमेंट मैनेजमेंट. ठीक है, ये हमारा मेन कंसर्न है विद द वर्ड ग्रीन. अब चाहे वो ग्रीन मार्केटिंग हो, वो ग्रीन फाइनेंस हो, वो ग्रीन प्रोडक्शन हो या ग्रीन एचआरएम हो, हमारा मेन कंसर्न इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मदर अर्थ. हमारा मेन कंसर्न वुड बी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. हमारा मेन कंसर्न वुड बी टू कोप विद द इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन. ठीक है, अब उसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन से लेकर ग्रीन हाउस इफेक्ट तक इस तरह के बेशुमार पर्सपेक्टिव्स आपके इन्वॉल्व वो हो जाएंगे. राइट, सो अगर आप ग्रीन एचआरएम के ऊपर काम करना चाहते हो और आपका फोकस ऑफ रिसर्च इज बेस्ड अपॉन रिक्रूटमेंट, तो उस हवाले से आप इसके पॉइंट्स देख लो कि ग्रीन जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर एम्प्लॉइज वो आपको डेवलप करनी है. ओके, अब शुरू की पूरी डिस्कशन अगर आप अपने जहन में रिकैप करो तो मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में टीडीआरस आपने डिफाइन करने हैं, एक एक निटी ग्रिटी एस्पेक्ट के ऊपर मैंने बात करने की कोशिश वो आपके साथ की. अब हम उसके रिसर्च पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि आप रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हो रिलेटेड टू द ग्रीन एचआरएम, तो वो बात करता है कि आपको ग्रीन जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर एम्प्लॉइज बनानी है एंड ग्रीन गोल्स इंक्लूडिंग which included into managerial job description. अब ये जो ग्रीन गोल्स होंगे एक्चुअली दे वुड बी लिंक्ड विद द केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. मैंने आपको बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर केआरए, केपीए, केपीआईज आपको बनाने हैं, तो उन केपीआईज को अब आप ग्रीन मोटिव्स के साथ लेकर आओगे. उन केपीआईज में उन टारगेट्स को एलैबोरेट किया जाएगा जो टारगेट्स एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी और प्रोटेक्शन की बात वो कर रहे हो, रिगार्डलेस कि आप किस जॉब की बात कर रहे हो. अब वो जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जॉब रिलेटेड टू सेल्स है, जॉब रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपने वो टास्क असाइन करने हैं जो टास्क सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो. सेकंड पॉइंट देखिए, वो कहता है कि ग्रेजुएट परसेप्शंस ऑफ ग्रीन प्रैक्टिसेस रिक्रूटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि एप्लीकेंट्स यूज ग्रीन क्राइटेरिया, इसके ऊपर बात की जाने की जरूरत है. Okay, the question which is being asked to me is what is meant by green HRM. मैंने आपको भी बताया डियर कि the word green is basically related with the sustainability and protection of environment. इस वक्त दुनिया को जो चंद एक बड़े चैलेंजेस का सामना है, उन चैलेंजेस में एक environmental sustainability है, because deterioration of the environment वो बहुत ज्यादा हो चुकी है. ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन्स, आपकी सॉलिड वेस्ट के प्रॉब्लम्स, आपकी लिक्विड एमिशंस के प्रॉब्लम्स, गैसियस एमिशंस, रेडिएशंस, बेशुमार इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ लिंक्ड हैं, जो प्लूटेंट्स हैं, जो कि रूह इंसानी की जो बका है उसके लिए खतरा है. देयरफॉर कोशिश ये की जा रही है कि आप ग्रीन पर्सपेक्टिव में मूव करो. ये जो मूवमेंट है, बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट द ग्रीन मूवमेंट. अब जो ग्रीन मूवमेंट है, इट इज लिंक्ड विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. इट इज लिंक्ड विद आपकी ग्रीन प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो ना हो. इट इज लिंक्ड विद ग्रीन फाइनेंस, इट इज लिंक्ड विद ग्रीन एचआर, इट इज लिंक्ड विद ग्रीन मार्केटिंग. तो आपने हर एक बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड मोटिव को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ एसोसिएट वो करना है. अब चूंकि इस वक्त हम बात एचआरएम से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपको मैं एचआर की फील्ड में बता रहा हूं कि ग्रीन एचआर किस तरीके से डिस्कस वो किया जाता है. बाय द टाइम व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, तो वहां पर आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि ग्रीन मार्केटिंग जो है उसके लिए आपने किन किन पॉइंट्स को जहन में वो रखना है. सो रिक्रूटमेंट के केस में अभी हमने पढ़ा कि ग्रेजुएट परसेप्शंस ऑफ ग्रीन प्रैक्टिसेस वो आपने डेवलप करवानी है और आपने उन्हीं लोगों को प्रेफर करना है रिक्रूटमेंट में हु आर बेसिकली
in accordance with the green movement. ठीक है, इसी तरह आपके ग्रीन जॉब कैंडिडेट्स वो हायर होंगे. रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर ग्रीन अवेयर बिकम्स पार्ट ऑफ द इंटरव्यू स्केड्यूल. कि अगर आप ग्रीन, आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री वो ग्रीन एचआरएम को सपोर्ट एंड प्रमोट करना चाहती है, और तो रिक्रूटमेंट के अंदर आपने स्पेसिफिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस वो ऐड करने हैं जिनमें के ग्रीन अवेयरनेस की बात वो की जाएगी. ओके और ये ग्रीन के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एथिक्स. ठीक है, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर सर्वाइवल. सो एवरीबॉडी, particularly the business graduates, they should be well aware कि जो green movement है, that is the future, that is the contemporary issue of today. So green aspects introduced to the induction process. कि जब आपने ओरिएंटेशन सेशन भी करना है तो ओरिएंटेशन में भी आप लोगों को ग्रीन मूवमेंट के बारे में वो अपनी डिस्क्रिप्शन सारी वो बताओगे. There is a comment on the Zoom group chat that green environment can be the cause of decline of some businesses. Basically इस movement ने जहां पर बहुत से organizations को support and promote भी किया, so obviously वहां पर companies के लिए challenges भी create हो रहे हैं. Okay? और जब governments भी इस बात पर emphasis करना शुरू कर देंगी कि आपने solid waste नहीं जो है वो proper dispose of process के बगैर नहीं फेंकनी, आपने लिक्विड एमिशंस जो है वो रिवर्स में नहीं डालनी, आपने गैसियस एमिशंस को कंट्रोल करना है, आपने जो रेडिएशंस हैं उनको कंट्रोल करना है, तो उससे जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं, नो डाउट फॉर वन टाइम दे माइट इंक्रीज. ओके, लेकिन इन द बिगर कंसर्न जब हम इस चीज को देखते हैं तो उससे जो आइंदा आपके कस्टमर की नीड वांट्स हैं वो भी ग्रीन पर्सपेक्टिव में डेवलप हो रही हैं. कस्टमर्स को भी शौर दिया जा रहा है कि उन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए जो कि ग्रीन एसोसिएशंस के साथ हों. ओके, आप बहुत से अगर मशीन्स परचेज करते हो तो उनके साथ उनके रैपिंग्स के ऊपर यू माइट हैव सीन द 3 लीव्स. ठीक है, सो वो लोगोस जो इस वक्त अब एडप्ट किए जा रहे हैं वो बेसिकली इस चीज के बारे में निशानदही है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया वो रिसाइक्लेबल था. ठीक है, अभी जो रिसाइकल का कॉन्सेप्ट है दैट इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्रीन मूवमेंट. ओके, तो रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज किया जाए ताकि डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज वो ना हो. रीजन बीइंग कि अगर डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उससे एक तो बिजनेसेस नहीं पूरी रूह इंसानी सफर करेगी. ओके, सो दैट इज द रीजन on one side when it is supporting and promoting businesses, so on the other side it is also putting challenges for the companies to develop their context in terms of these aspects. So recruitment में जैसा भी हम यहां पर देख रहे थे कि becoming a green employer may produce other HR benefits like increased staff motivation or an engagement reduction in labor turnover and increasing workforce health. अपनी एचआर की डिस्कशन में मैंने बिल्कुल शुरू में आपको एक रिसर्च आर्टिकल दिखाया था जिसमें मैंने डिस्कशन ये लॉन्च करवाई थी कि पर्टिकुलर मैटर जो है उससे जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग ऑन द पावर लूम्स दे आर सफरिंग अ लॉट. ओके, तो अब अगर हम वहां पर ग्रीन मूवमेंट के तहत प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एग्जॉस्ट्स, प्रॉपर मास्क्स वो उनको प्रोवाइड करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें जिन टेक्नोलॉजी से पर्टिकुलर मैटर जो है उसकी जो एमिशन है, उसका जो फ्यूम्स हैं कॉटन के एनवायरनमेंट के अंदर वो कम से कम हो, तो उससे वर्कर्स का तहफ्फुज भी वो होगा. ठीक है, तो ये सब आपके एरियाज हैं जिन पे आप बात कर सकते हो रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्रीन एचआरएम. For example, the other day, some of the students came and discussed that they want to work upon green aspects of HRM. So the issue is कि आपको बहुत clearly पता होना चाहिए कि green HRM is not a magic. Green HRM is not something which is a formula. इसके अंदर आपको properly define करना होगा कि किन domains में you want to work. इसी तरह आप इसी सीक्वेंस में देखिए कि अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल की बात करें तो ग्रीन पर्सपेक्टिव में वो कहता है कि ग्रीन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनटू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आपको ग्रीन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऐड अप करने पड़ेंगे. आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट से रिलेटेड वो हो. और तमाम एम्प्लॉइज की जॉब में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो ग्रीननेस
की खिलाफ वर्जी ना करें। ओके आपने बहुत सी ईमेल्स, फॉर एग्जांपल इसी मूवमेंट के तहत मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आपने बहुत सी ईमेल्स देखी होंगी जिनके नीचे एक फुट नोट लोग लगाते हैं, एक सिग्नेचर ऐड करते हैं कि प्लीज डू नॉट प्रिंट। So why we should not print the email? Why we should not print the documents जो electronically हमें मिलते हैं? The reason being कि printing would be on the paper and the paper is produced by the wood and the wood is getting shorter in the world. Okay? Deforestation. अब इसके बैकएंड के ऊपर अब हम कहां पहुंच रहे हैं? Deforestation पर पहुंच रहे हैं। तो deforestation वो हो रही है not just because of the furniture market but because of the paper market as well. Okay? तो इस तरह से चीजें आपस में लिंक्ड हैं। दैट इज द रीजन कि बहुत से कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में एक मूवमेंट शुरू हुई एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेपरलेस ऑफिस। अब पेपरलेस ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपका ग्रीन पर्सपेक्टिव में काउंट किया जाता है कि जहां पर उन्होंने तमाम चीजों को डिजिटल रिसोर्सेज में सेव करने की बात वो शुरू की एंड दे स्टॉप टॉकिंग अबाउट कि हमने चीजों की प्रिंटिंग करके उनको सेव करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उस पेज को प्रिंट करके डिस्कार्ड प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो दैट इज ए शेयर वेस्टेज। ओके तो इन चीजों को अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट नॉलेज हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी एडअप वो कर रहे हैं। Likewise, communication of green schemes to all levels of staff through performance management and appraisal scheme. Managers are set green targets, goals and responsibilities. ये उनके एडअप किए जाएंगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर चेक किया जाएगा कि किस एम्प्लॉय ने कितना पार्टिसिपेट किया। Likewise, अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करो तो यहां पर ऑब्वियसली हमें एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। और लाइकवाइज आपको ये भी पता होगा कि ISO सर्टिफिकेशंस भी जो हमें अवेलेबल हैं उन सर्टिफिकेशंस में भी ISO 14000 is talking about environment protection, ISO 18000 is talking about employee safety and health. ओके तो अब स्टैंडर्डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे अपने मुल्क में भी देयर आर मेनी कंपनीज हु वेंट फॉर अप्लाइंग ISO 14000, ISO 18000, तो वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, इन तमाम चीजों की बात वो कर रहे हैं। And being like scholars, we should be knowing कि इसकी implications किस अंदाज में वो हो सकती हैं। Therefore, अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव को देखो तो वो कहता है कि इंटीग्रेटिंग ट्रेनिंग ऑन इंस्ट्रक्शन एंड जनरेशन ऑफ इको वैल्यूज। ठीक है, तो इको वैल्यूज के बारे में लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कहां पर क्या क्या चीजें वो एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज कर रही हैं। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इट इज सेड कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रीन सजेशन स्कीम्स, तो लोगों से राय ली जाए, लेबर यूनियन से राय ली जाए, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए कि हम किस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को टेलर कर सकते हैं जिससे कि जो तहफ्फुज है एनवायरनमेंट का, जो लोगों की सेहत का तहफ्फुज है, जो ओवरऑल मदर अर्थ का तहफ्फुज है, वो मुमकिन हो पाए। ओके लाइकवाइज आप जैसे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट उसके ऊपर बात की जा रही है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसी तरह अगर आप पे एंड रिवॉर्ड की बात करो, अभी जैसे आपको मैंने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फ्रेमवर्क दिखाया रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से, तो अब वहां पर भी जिस चीज को अब डेवलप करने की जरूरत है दैट इज पे एंड रिवॉर्ड। अब पे एंड रिवॉर्ड में वो कहता है कि ग्रीन पे / रिवॉर्ड सिस्टम, टेलर पैकेजेस टू रिवॉर्ड ग्रीन स्किल्स एक्विजिशन, कि जो लोग अपने आप को ग्रीन स्किल्स में महारत देंगे those would be the people who will be having the higher benefits. Okay, so that means कि एक बहुत बड़ा रूम जो हमारे पास अब अवेलेबल होगा, that would be that we have to develop our skills related to the environmental perspectives. ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ के हवाले से भी, जिसके हवाले से आपके बेशुमार अदर स्टैंडर्ड्स जो ओशा वाले प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं। Like OSHA stands for Occupational Safety and Health, तो Occupational Safety and Health के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें इस बात को देखना होगा कि किस तरीके से, किस अंदाज से हम अपने आप को ग्रीन मूवमेंट के तहत अपग्रेड और अपडेट वो कर सकते हैं। ओके सो लाइकवाइज अगर हम एग्जिट की बात करें, अब एग्जिट जिसमें कि एम्प्लॉय की सेपरेशन हो रही है विद द कंपनी, उस एग्जिट के कॉन्टेक्स्ट में भी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एस्पेक्ट। Okay, so for example, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि staff debriefings in environment management in case of dismissal, managers to ask if green issues are reasons for resignations, moving to a more green employer, or we can talk about role of exit interviews to gauge perceptions of
फर्म ग्रीननेस। तो अब कंपनीज की जो ग्रीननेस है उसके ऊपर बात वो की जा रही है। तो हमने यहां पर जितने भी एचआर फंक्शनैलिटीज हैं उन तमाम फंक्शनैलिटीज को देखा कि एचआरएम और ग्रीन मूवमेंट की आपस में कोलैबोरेशन कैसी है और इनके तहत किन किन चैलेंजेस का सामना वो हमें करना पड़ेगा। लाइकवाइज हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रीननेस हैं, जहां जिसको हम शेड्स ऑफ ग्रीन कहते हैं। इसमें हमारे पास लाइट ग्रीन है, इसमें हमारे पास ग्रीन इटसेल्फ है, जिसमें कि हम नॉन ग्रीन एस्पेक्ट की बात करेंगे और डार्क ग्रीन पर्सपेक्टिव की बात वो करेंगे। यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए।